Yes. Degree of polynomial बहुत आसान. P of x is equal to 4 minus 3x square minus 4x cube plus 7x. What is the degree of this polynomial? 3. Yes. इसकी डिग्री है 0, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3 और फोर्थ टर्म की डिग्री 1. हाईएस्ट जो भी है that is called the degree of polynomial. So ये देख लेना, ये आसान सा क्वेश्चन हो सकता है. All right. So children, that's all for your basic paper. Now I start with your standard paper, and to start with, ये दो फॉर्मूला याद रखना. This is what? Semicircle. Second semicircle, third semicircle, and fourth semicircle. है ना? And what is the area of this region? याद है? Required area is equal to 4 times area of semicircle minus area of square. याद है? Area of square minus 4. No. Area of 4 times area of semicircle minus area of square. 4 times area of semicircle minus area of square will give you this. वो अनशेडेड रीजन का आप जो बोल रहे हो अनशेडेड, लेकिन हमें केवल शेडेड का ही देखना है. और दूसरा फिगर स्क्वायर में ही आई थिंक सेक्टर, एक सेक्टर माइनस सेक्टर और ये दूसरा माइनस सेक्टर एंड रीजन ऐसे. सो हियर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर minus area of triangle square, area of square. ध्यान में रखना ये दो, मतलब you can use the formula directly, लेकिन यहाँ जो भी लेंथ है वो डायमीटर है, यहाँ जो भी लेंथ है वो रेडियस है. ये रेडियस है वो सेक्टर का, दिस इज रेडियस, और ये सेमी सर्कल का डायमीटर. ध्यान में रखना ये कॉन्सेप्ट. ओके. अब कंस्ट्रक्शन, a construction where you have to draw the circle with some round object like bengal. So exam में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको bengal दी जाएगी या something, some means to draw the circle. लेकिन आप bengal से circle draw करोगे तो आपको center मिलने वाला नहीं है. You won't have the center. Now, draw a circle with the help of bengal and take a point in its exterior and draw the tangents to the circle. This is the question. क्या करेंगे children? ये तो सर्कल पे है. अब वो पॉइंट एक्सटीरियर है, उसको सेंटर से जोड़ना है, लेकिन मेरे पास तो सेंटर ही नहीं है. You understand? So what we'll do? Draw 2 chords. As any 2 chords. A, B and C. कोई भी 2 कॉर्ड ड्रॉ, अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं या एक कॉमन एंड पॉइंट के साथ. ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. सो सेंटर A मोर देन हाफ रेडियस ले लो, ये आर फिर ये और ये. सो यहां से एक लाइन जाएगी ऐसे ड्रॉ करो. इज दैट क्लियर? नाउ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. सेंटर B ले लो, रेडियस मोर देन हाफ, अपर हाफ प्लेन में एक आर्क, लोअर हाफ प्लेन. सेंटर C ले लो, रेडियस मत बदलो, ये अपर हाफ प्लेन में लोअर हाफ प्लेन, और यहां से जाने वाली दिस इज L एंड दिस इज लाइन M, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दोनों जहां पे मिले वही हमारा सेंटर है. नाउ यू कैन टेक पॉइंट P एनीवे, डिस्टेंस नहीं दिया, सो यू कैन टेक पॉइंट एनीवे आउटसाइड और इसको O बोल दो एंड जॉइन इट. Now you know what you have to do. You have to obtain M, the midpoint of this. So center O, arc, center P, arc, and then this, and this point is M. Okay. After that, what you are going to do? Yes. Draw a circle with center M and radius S. जो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो, ये है PQ और ये है PR. These are the 2 tangents. लेकिन ये important thing क्या है? You have to draw the circle with bengal and get its center. Is that clear?
ये चीजें बतानी थी आपको मुझे। ऑलराइट, आगे प्रूव दैट ट्रिगोस cos theta minus sin theta plus 1 upon cos theta plus sin theta plus 1 is equal to sec theta minus tan। ये प्रूफ जरा देख लो प्लीज, पे अटेंशन। जो राइट हैंड साइड है कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डू यू फाइंड? सेकंड। और यहां तो सब cos ऑफ। नाउ व्हाट इज दिस sec? 1 upon cos minus tan sin upon cos, मतलब नीचे क्या है? I'll pick up left hand side, cos theta minus sin theta plus 1 upon cos theta plus sin theta plus 1। See children, what I am doing next, ये जो न्यूमरेटर है cos theta minus sin theta plus 1 और ये जो डिनोमिनेटर है cos theta plus sin theta plus 1, I'm going to divide both numerator and denominator by cos theta. I'm going to divide by so cos, now split cos theta upon cos theta, right, minus sin theta upon cos theta plus 1 upon cos theta equal whole upon cos theta upon cos theta plus sin theta upon cos theta plus 1 upon cos theta, that is equal to, बोलो cos upon cos is 1, sin upon cos is tan theta और plus 1 upon cos is sec theta, whole upon cos upon cos is 1 plus sin upon cos is tan theta and plus 1 upon cos is sec theta। Alright, so yes, जो sin cos में था it got converted into sec and tan, लेकिन यहां तो सिर्फ दो टर्म है और वो न्यूमरेटर में, तो आप न्यूमरेटर वाला 1 में आइडेंटिटी यूज करो जो sec और tan वाली है। वो आइडेंटिटी क्या है? 1 plus tan square theta is equal to sec square। so 1 को सब्जेक्ट में तो फॉर्मूला बनाओ 1 is equal to sec square theta minus tan square, तो वो 1 की जगह पे लिखो sec square theta minus tan square theta प्लस टर्म पहले लिख रहा हूं मैं sec theta और माइनस टर्म पीछे लिख रहा हूं। ओके, साइन कोई चेंज नहीं किया, प्लस वाली टर्म पहले, प्लस रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स और ये 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, इसका ग्रुप बना दिया दोनों। इसके तो दो फैक्टर मिलेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्लस हुआ ना तो ग्रुप बनाते समय अंदर साइन चेंज नहीं, इसलिए मैंने पॉजिटिव टर्म पहले है। बोलो इसका sec थीटा माइनस into sec theta plus tan theta, a square minus b square is a minus b into a plus b, so sec square minus tan square will be sec minus tan and sec plus tan, correct? theta लिखो plus sec theta minus tan theta bracket upon 1 plus tan theta plus sec theta। children, ये ऊपर कुछ कॉमन है, sec theta minus tan theta is common, so sec theta minus tan theta is common, so ब्रैकेट में क्या बचा? ये वाला बच गया sec theta plus tan theta प्लस कुछ भी नहीं है, सो यहाँ 1 होल अपॉन, ये सेम ही है sec theta plus tan theta plus 1, अरेंज करो sec theta plus tan theta plus 1, I can write in that way sec theta plus tan theta plus 1, ये कैंसिल and that is equal to sec theta minus tan theta and that is equal to right hand side। I hope that is clear। हो सकता है कल देखना, हाँ सीन तो नहीं होगा, ट्विस्ट होगा, है ना? You cannot expect everything same, everything नहीं, nothing same आएगा, समझ लेना। हाँ, लेकिन इसको ध्यान में रखो कैसे आता है। चलो अदर वन, वो भी है, वो भी हो सकता है पेपर, लेकिन सेम नहीं, ट्विस्ट मिलेगा आपको।
square root of cosec A plus 1 upon cosec A minus 1 is equal to 1 plus sin A upon cos A. Now please pay attention. What you can do, लेफ्ट हैंड साइड साइन में कन्वर्ट कर दो तो साइन में आएगा ना सर, कॉस कहां से आएगा? आएगा, डोंट वरी. लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही मैंने लिया, समझ लो. दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन 1 होल अपॉन डिवाइड बाय 1 अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर रूट ऑफ LCM of 1 and sine, sine. यहाँ 1, यहाँ sine. So 1 1 जा 1 plus sine A 1 जा sine A. Okay? Divide by. Once again the LCM is going to be sine A 1 और यहाँ sine A. 1 1 जा 1 minus sine A 1 जा sine A. Convert this division into multiplication. So 1 plus sine A upon sine multiplied by sine A upon 1 minus sine. ये cancel. So that is equal to square root of 1 plus sine A upon 1 minus sine. नहीं, square root भी नहीं निकला, लेकिन कुछ आइडिया आ रहा है कि चिल्ड्रन ये 1 plus sine है, 1 plus sine है, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर कब निकलेगा? जब होल स्क्वायर होगा. So demand and supply, ये लंबा राउंड है. 1 plus sine A अपॉन 1 प्लस साइन ए, ताकि न्यूमरेटर बन जाए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. और दिस इज a minus b into a plus b. So what is the expansion? a square 1 square 1 minus sin square a. स्क्वायर रूट बना रहेगा, ऊपर से निकला स्क्वायर रूट गया, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए, नीचे स्क्वायर रूट रहा. लेकिन what is 1 minus sin square? cos square A. अब वो भी स्क्वायर रूट चला गया, so 1 plus sin A upon cos A. है ना? इसका अलग भी कर सकते हैं प्रूफ. 1 upon cos A स्प्लिट कर सकते हैं और sin A upon cos A, that is sec A plus tan A. कुछ ऐसा. Either your right hand side can be this or this. आशय तो बेस्ट है. आगे बढ़ो. Is that clear, children? Yes, understood? Okay. Understood, children? Yes. ये समझ में आया? Okay. अब next concept. Good. ये याद करो चिल्ड्रन, ये एक ऑब्जेक्टिव आएगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और ये 90 डिग्री. 0 1 0 30 रूट 3 by 2 और उसका जोड़ीदार 1 over root 2 1 over root 2. इसका उल्टा ये हाफ पहले रूट 3 by 2 और इसका उल्टा ये 0. नथी ओके. नाउ जस्ट पे अटेंशन. ये आने वाला है. पहला हमेशा cos होता है, दूसरा sin. ऑलराइट. cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90. कोई बच नहीं गया ना? पांचों आ गया. What is cos 0? 1. What is cos 30? root 3 by 2. What is cos 45? 1 over root 2. What is cos 60? 0.5 है ना? And what is cos 90? 0. What is happening to theta? यहाँ देखो theta, ये theta है, increases. Theta increases. अब ये फर्स्ट और लास्ट देख लो, डिक्रीज हुआ है ना? also decreases. So ऐसे समझ लो, when theta increases, cos theta decreases. कोई भी 6 में से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ले लो. चलिए अब tan की बात. tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री. ऑलराइट. थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज. थीटा इंक्रीज. ऑलराइट.
अब वैल्यू देखते हैं, tan 0 sin upon cos, so that is 0. tan 30 1 upon root 3, tan 45 1 upon 1, tan 60 root 3 upon 1, now 1 upon 0 infinity. अरे भाई ये क्या हुआ? लास्ट इंक्रीजिंग, इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा, so when theta increases tan theta also increases. एक और देख लेते हैं, sec 0 डिग्री, sec 45 डिग्री, sec पहले 30 डिग्री आई, फिर 45 डिग्री, sec 60 डिग्री, sec 90. sec is reciprocal of cos. बोलो sec 0 cos 0 का रेसिप्रोकल 1, root 3 by 2 तो 2 upon root 3, 1 upon root 2 तो root 2 upon 1 तो 2 जो बढ़ रहा है, और 1 upon 0 that is infinity. This increases. So if theta increases, sec theta also increases. उल्टा करें तो if theta decreases, sec theta also decreases. Here when theta increases, रिवर्स कोई नहीं आया ना, सब इंक्रीज का ही आया है ना. एक और देख लेते हैं, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90. What is sin 0? 0. Sin 30 is 0.5. That 1 upon root 2. Then root 3 by 2 or 1. See, theta increases. Sin theta also increases. है ना? Theta increases. यहाँ डिक्रीज आया था, एक डिक्रीज आया. Okay, fine. So when theta increases, cos theta decreases. If theta decreases, cos theta increases. वो रिवर्स कर सकते हैं. वो आ गया, right? Okay. तो ये चीज आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद रखना होगा. एक ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, या average age of 5 friends is 3K. Average age of 5 friends, how many friends? 5 is 3K. समझ लो चिल्ड्रन, friend 1, friend 2, friend 3, friend 4, friend 5. थोड़ा टेक्निकली बता रहा हूं. ऑलराइट, प्रेजेंट एज. बोलो फ्रेंड 1 की एज 3K. ये सब सेम एज वाले नहीं है, लेकिन एवरेज की वजह से 3K. सो टोटल एज कितनी हुई? टोटल प्रेजेंट एज 15K हुई ना. अब व्हाट इज देयर टोटल एज 3 years ago? टोटल एज 3 years ago, 3 साल पहले कितनी थी? 3 years ago. बोलो इसकी 3K है तो 3K माइनस 3K माइनस 3K माइनस 3K माइनस 3K माइनस 3. ओके, टोटल एज. बोलो ये सब टोटल कर दो. यस, 15K. 3K प्लस 3K प्लस 3K प्लस 3K is 15. minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 is minus 3. So this will be their age 3 years. Total age 3 years ago. लेकिन एवरेज एज को समझना है. ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट. दूसरा, सेमी सर्कल. Children, how is the angle inscribed in a semicircle? Right angle. It is always a right angle. Angle inscribed in a semicircle. ये डायमीटर है, ये सेमीसर्कल है. एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ semicircle is always. ये ब्लैक एंगल वो भी 90. ये ब्लू एंगल वो भी 90. ये तीन में से किसकी एरिया सबसे बड़ी होगी?
किस ट्राइंगल के एरिया सबसे बड़ी होगी? रेड। ब्लैक की कम दिख रही है, ब्लू की इससे ज्यादा और रेड की। एक्चुअली मैंने तो सिर्फ 3 ट्राइंगल ड्रॉ किए, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट ट्राइंगल्स। ओके, सो कौन सा सबसे बड़ा ट्राइंगल होगा? कौन सा सबसे? जिसका अल्टीट्यूड रेडियस होगा, जिसका अल्टीट्यूड, इसका अल्टीट्यूड छोटा है, इसका अल्टीट्यूड इससे बड़ा है, जिसका अल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा वो रेडियस होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जितने भी ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, देखो इसका अल्टीट्यूड छोटा है, उससे इसका बड़ा है और उससे उसका बड़ा है, तो सपोज कि ये रेडियस ही है, तो वो दैट विल बी द बिगेस्ट अल्टीट्यूड और बेस इज गोइंग टू बी द डायमीटर। जो बेस ऑफ ट्राइंगल होगा वो एरिया ऑफ लार्जेस्ट triangle inscribed, yes, inscribed in semicircle is equal to formula तो half into base into altitude। ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, सो हाफ into base, base क्या है? Can I write 2r for diameter? 2 times radius, and altitude क्या है? वो हाइट सबसे बड़ा, 2 cancel, so that is r square. So area of the largest triangle inscribed in the semicircle is r square. जो भी रेडियस होगा उसका स्क्वायर। देखो, what is the area of the largest triangle inscribed in a semicircle with diameter let's say 6 centimeter? No, ये diameter है 6 centimeter, तो रेडियस पहले ढूंढना पड़ेगा। रेडियस 3 सेंटीमीटर और इसका एरिया होगा, ये ट्राइंगल सबसे बड़ा ट्राइंगल का एरिया होगा है ना r स्क्वायर, दैट मींस 3 स्क्वायर एंड दैट इज 9 स्क्वायर। सो ये एक ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखना, प्लीज पे अटेंशन। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके। ये एक सम देख लेंगे, एक सम देख लेते हैं, बाकी का सब हमने किया भी है, so there is no problem. Pth term of an AP is 1 upon Q and a qth term of an AP is 1 upon P. Then what is pqth term? What is pqth term? Pth term का सिंबल क्या होगा? AP, that is 1 upon Q, and that is formula बोलो, A plus P minus 1 into result 1. Qth term symbol क्या है? AQ, qth term which is 1 upon P और formula A plus qth term, so Q minus 1 n term minus 1 into D, result number। और हमारा टारगेट क्या है? pth term symbol PQth term, so A into PQ, actually PQth term APQ, that is A plus PQ minus 1। So this is what we ought to find, हमको वो ढूंढना है, P into Q, जो भी प्रोडक्ट है उसकी टर्म। चिल्ड्रन यहाँ आज जरा समझ लो मैं क्या करने वाला हूँ। 1 minus 2 इक्वेशन 1 minus इक्वेशन 2, अभी ज्यादा समझा नहीं रहा हो, टाइम भी नहीं है और ये रिवीजन। सो बोलो 1 upon Q minus 1 upon P is, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, A plus P minus 1 into D, A plus P minus 1 into D, नीचे लिखा है this is Q of course। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये माइनस होगा ना, ये अंदर का प्लस नहीं होगा, ठीक है, सो प्लस है माइनस है, राइट, ओके। इसका एलसीएम P into Q, यहाँ P यहाँ Q, P वन जा P माइनस Q वन जा Q, दैट इज इक्वल। अब ये दोनों टर्म से हम D कॉमन निकालेंगे, तो ये P माइनस 1, ये माइनस है, माइनस ब्रैकेट, दो काम साथ में करते हैं, माइनस Q प्लस 1, ये कैंसिल, सो देयरफॉर P माइनस Q अपॉन PQ इज इक्वल टू D इनटू P माइनस, अरे वाह, P माइनस Q कैंसिल, सो व्हाट इज D इज इक्वल टू 1 अपॉन PQ, कॉलिंग रिजल्ट नंबर 3। चिल्ड्रन ये D की वैल्यू आई
1 upon p, d की वैल्यू। अब ये इक्वेशन में हम d की वैल्यू डाल दे and let's find out the value of a. All right, so बोलिए 1 upon q is equal to a plus e minus 1 into d, that is 1 upon pq. चलो 1 upon q minus ये पूरी टर्म ये बाजू लाओ, p minus 1 न्यूमरेटर में और pq डिनोमिनेटर में, that is a. What is LCM? pq. यहाँ p बचा, यहाँ कुछ नहीं, p into 1 is p minus फिर ब्रैकेट में, but I'm writing direct minus p or plus 1, plus p minus p cancel. So what is a? A is equal to what? 1 upon pq. बस मेरा टारगेट ये भी लिख दो ना. Now a pq is equal to a क्या है? 1 upon pq plus बोलो pq minus 1 upon d भी वही है 1 upon pq. So 1 upon pq 1 लिखने की जरूरत नहीं है, pq नीचे लिखा. अरे वाह, लाइक डिनोमिनेटर pq, सीधा 1 प्लस, इस बार तो प्लस है, pq माइनस, ये कैंसिल. So you got pq upon pq and that is 1. ओके, ये प्रूफ दिखाया. लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे दे, जरा समझिए, कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे दे कि 7th टर्म a7 is 1 upon 30 and 13th term a13 is 1 upon, then what is a13 into 7? 91 है ना. 13 multiplied by 7 91, that will be always 1. ये तो a into 13 into 7 pq हुआ, a pq is always 1. Okay, 10th term of an AP is 20 and 20th term of AP is 10. ये देख लो कंडीशन. Then what is a 10 into 20? 200 दे देंगे, वो भी 1 ही होगा. So ये ध्यान दे रखना. Is that clear? We are running out of time, लेकिन इतनी चिंता भी नहीं है क्योंकि हमारा काम भी पूरा होने वाला है. Yes, the 2 theorems जो मैं बता दे रहा हूँ, Pythagoras and converse of Pythagoras, दोनों प्रिपेयर कर लेना अच्छी तरह. Do you understand? दोनों के लिए, बेसिक पेपर और स्टैंडर्ड पेपर के लिए वो भी प्रिपेयर करना है आपको. चलिए, अब ये एक रिजल्ट हमारे पास टाइम बचा है. We have a circle with center O, point P in its exterior, and these are 2 tangents. These are 2 tangents. ये radius PQ, OQ, ये radius OR. These are radii, right? Now, if you join Q and R, you get the chord.